1 सितंबर से तमाम तालीमी इदारे खोलने के हुकूमत के फैसले के पस मंजर में हैदराबाद की मेयर जी विजयलक्ष्मी ने जुमेरात को शहर के मुख्तलिफ सरकारी स्कूलों का मुआयना किया। उन्होंने स्कूलों में साफ सफाई और कोविड-19 प्रोटोकॉल को यकीनी बनाने की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने बताया कि स्कूलों में बैतुल खलाओं और पानी की टैंकियों की साफ सफाई के लिए बल्दिया की खुसूसी टीमें तश्कील दी गई हैं। वाज़ेह है कि शहर में डेंगू के केसेस में इजाफे की इत्तलात के बाद जीएसएमसी काफी मुतहरिक हो चुका है। उनके दौरे में जीएसएमसी के आलादार भी थे। ఇప్పుడు ఫస్ట్ నుంచి స్కూల్స్ స్టార్ట్ అవుతున్నాయి. సో ఈ రోజు 26th నుంచి 30th వరకు కంప్లీట్గా ఫాగింగే కానివ్వండి, ఏమైనా చెట్టు మొలకలే మొలుస్తున్నాయి అవి తీసేయడం కానీ, ఫాగింగ్ చేయడం కానీ, దోమలు లేకుండా, అంటే ఇట్ ఈస్ లైక్ మనం సమ్మర్ తర్వాత స్కూల్స్కి కొత్తగా వెళ్తే ఎట్లుంటుంది అట్లా. అంటే హై ప్రయారిటీ మేము ఎక్కడ ఇస్తున్నామంటే శానిటేషన్కి ఇస్తున్నామంటే ఏదైతే క్లోరైడ్ సోడియం క్లోరైడ్ హైపోక్లోరైడ్ని స్ప్రే చేయడము. అండ్ ఇది కొన్ని మేము ఎట్లా చేస్తున్నామంటే వన్స్ చిల్డ్రన్ వచ్చాక డిపెండింగ్ ఆన్ హౌ ఇంపార్టెంట్ ఇట్ ఈస్, ఎన్ని రోజులకు ఒకసారి కొట్టాలి అనేసి మా ఏమోచ్లకి కొంచెం మంచిగా తెలుస్తుంది. వాళ్ళ ఒక అభిప్రాయం తీసుకుని కూడా వీ విల్ డూ ఇట్ ఆన్ రెగ్యులర్ బేసిస్. స్కూల్స్ క్లీనింగ్ సంబంధించి ఎలా చేస్తున్నాం సంవత్సరం నుంచి అంత పటాబడి చాలా డీటెయిల్డ్గా చేస్తున్నామండి. అందుకనే నేను ఇవాళ ఒక టీం ఉంది, ఎవ్రీ స్కూల్కి ఒక టీం పెట్టాం. ఇప్పుడు ఆన్ ద హోల్ ఈ అంబర్పేట్ డివిజన్లో 66 స్కూల్స్ ఉన్నాయి. దాంట్లో 11-14 గవర్నమెంట్ స్కూల్స్ ఉన్నాయి. సో మేము గవర్నమెంట్ స్కూల్స్ లోపల మాత్రం మా స్టాఫ్ని జిహెచ్ఎంసీ స్టాఫ్, టోటల్ జిహెచ్ఎంసీ స్టాఫే కాకుండా హెల్త్ శానిటైజేషన్ వీళ్ళందరూ ఉన్నారు, వీళ్ళు చేస్తుంటారు. ఒక్కొక్క టీంని ఒక్కొక్క స్కూల్లో పెట్టాం. నేను ఇప్పుడు అదే ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఏమిస్తున్నానంటే బెంచ్ దగ్గర నుంచి ఒక బెంచ్, ఒక స్టూల్ దగ్గర నుంచి ఇప్పుడు మీరు వార్డ్రోబ్ చూసిన ఇంత కూడా ఒక చెత్త ఉండకుండా, ఒక దోమ కనపడకుండా, అంటే అంత క్లెన్లీనెస్ ఉండాలా అనేసి వాళ్ళకి ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. కార్పొరేటర్ గారికి కానివ్వండి, ఏఎంఓహెచ్ గారికి కానీ, ప్రిన్సిపల్ని మాత్రం ఇక్కడ ఉండి చూసుకోవాలి అనేసి వాళ్ళకి కూడా చెప్తున్నాము. సో ఈ జాగ్రత్తలు తీసుకునే ఉంటున్నాము. అండ్ దాని తర్వాత కూడా వన్స్ పిల్లలు స్టార్ట్ అయ్యాక కూడా వీ విల్ టేక్ నెసెసరీ యాక్షన్. रियासती वजीर एनिमल हस्बेंड्री टी श्रीनिवास यादव ने सिकंदराबाद की मुंडा मार्केट को मोजमजाई मार्केट के तर्ज पर तरक्की देने का ऐलान किया। उन्होंने प्रिंसिपल सेक्रेटरी म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन अरविंद कुमार के हमरा जुमेरात को इस इलाके का दौरा किया। उन्होंने खदीम जेल खाने में मल्टी लेवल पार्किंग की तामीर की तजवीज़ पेश की और पालिका बाजार तथा वेजिटेबल मार्केट सड़क की तोसी की हिदायत दी। इस मौके पर जोनल कमिश्नर श्रीनिवास रेड्डी, कॉर्पोरेटर दीपिका, जनरल मैनेजर वाटर वर्क्स रमना रेड्डी और दूसरे भी मौजूद थे। रियासती वज़ीर फाइनेंस टी हरीश राव ने कहा है कि हुजूराबाद टीआरएस का गढ़ रहा है और यहाँ बीजेपी को चुनाव जीतने के लिए हजारों करोड़ रुपए खर्च करने होंगे। इसके बावजूद बीजेपी की कामयाबी का कोई इम्कान नहीं है। हरीश राव विनिका वंका मंडल में पार्टी कारकुनों के इजलास से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मरकज में बीजेपी के इक़्तिदार में आने के बाद अवामी शोबे के तमाम इदारे एक के बाद एक फरोख्त कर दिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी अब किसानों के खेतों में भी बरखी मीटर लगाने जा रही है। बरखी से मुतालिक नए कानून के बाद बरखी की मुफ्त सरबराही और किसानों को 24 घंटे बरखी की सरबराही जैसा मामला खटाई में पड़ जाएगा। वज़ीर फाइनेंस ने कहा कि हुजूराबाद में मुकाबला टीआरएस और बीजेपी के माबैन होगा, जबकि कांग्रेस अपनी जमानत भी नहीं बचा सकेगी। इस जलसे को टीआरएस के उम्मीदवार जी श्रीनु, नामजद एमएलसी कौशिक रेड्डी और दूसरों ने भी खिताब किया। जय तेलंगाना, जय तेलंगाना, కేసీఆర్ గారి నాయకత్వం. అధ్యక్షత వహిస్తున్న మిత్రులు, ఆత్మీయులు, మా ఇద్దరి జంట ఎక్కడికి పోయినా అది గెలుపు బాటే. ఎందుకంటే సుదర్శన్ రెడ్డి గారు, నేను పరకాల ఉప ఎన్నికకు పోయినాం గతంలో. వారు వరంగల్ జిల్లా టీఆర్ఎస్ పార్టీ అధ్యక్షులు, నేను పార్టీ ప్రధాన కార్యదర్శి. ఇద్దరం కలిసి 40 రోజులు పరకాలలో కలిసి ఉన్నాం ఒకటే ఇంట్లో. నేను 40 రోజులు ఇంటికి పోలే, ఇక పరకాలనే ఉన్నా. ఇద్దరం కలిసి ఆడ పనిచేసినాం. పరకాలలో మన మలుగురి భిక్షపతి గారిని గెలిపించుకొని కేసీఆర్ గారి దగ్గర తీసుకుపోయినాం. మధ్యలో తాటికొండ రాజన్న తెలంగాణ కోసం రాజీనామా పెట్టి వస్తే స్టేషన్ గన్పూర్ నియోజకవర్గంలో కూడా వరంగల్లో అన్నకు ఒక ఇల్లు ఉంటుండే, కిరాయి ఇల్లే. అదే ఇంట్లో మేమిద్దరం ఒకటే టేబుల్ మీద తిన్నాం, ఒకటే రూమ్లో ఉన్నాం. నెల రోజులు 30-35 రోజులు అక్కడనే ఉన్నాం. అన్న పాదయాత్ర చేస్తే కాళ్ళకు పగిలి రక్తం కారింది సుదర్శన్ రెడ్డికి. అట్లా ఇద్దరం ఆడ 35 రోజులు పనిచేసినాం.
అక్కడ తాటికొండ రాజన్నను గెలిపించుకొని తీసుకుపోయి కేసీఆర్ గారికి అప్పచెప్పినాం. ఇప్పుడు మళ్ళా వీరవంకకు వచ్చినాం హుజురాబాద్కు. సుదర్శన్ రెడ్డి గారు, నేను, మీ అందరి సహకారం, మీ ఆశీస్సులతో గెలుపు సీన్గా మార్చి కేసీఆర్ గారికి అప్పచెప్తాం. సో అట్లాంటి మిత్రుడు 2001 నుంచి ఇవాళ వరకు 21 ఏళ్ళ దోస్తాన నాది పెద్ద సుదర్శన్ అన్నది, ఉద్యమ దోస్తాన. ఎన్నో పాడెలు మోసినాం, ఎన్నో శవాలు మోసినాం, ఎన్నో ధర్నాలు చేసినాం, ఎన్నోసార్లు అరెస్ట్ అయినాం, ఎన్నో రోజులు టీఆర్ఎస్ పార్టీ కోసం కేసీఆర్ నాయకత్వంలో పనిచేసిన నా మిత్రుడు, ఆత్మీయుడు మా పెద్ద సుదర్శన్ రెడ్డి గారు. అదేవిధంగా గౌరవ జెడ్పీ చైర్మన్ సోదరిమణి విజయ గణపతి గారికి, అదేవిధంగా మిత్రుడు, యువకుడు, చాలా ఉత్సాహంగా రాజేందర్ గారిని ఓడించి తీరాలని చాలా కసిగా ఉన్న కౌశిక్ రెడ్డి గారు, మరి మా సహదేవ్ రెడ్డి గారు. సహదేవ్ అన్నకు ఒక రిక్వెస్ట్ చేసిన, కర్మ్యాలు ఇల్లు కాల్ చేసి రేపటి నుంచి ఎన్నిక అయిపోయేదాకా వీరవంకలనే ఉండాలి. ఉండాలనే వద్దా? ఉండాలంటే సపోర్ట్ కొట్టుది. రేపటి నుంచి ఇదే కదా. इंस्पेक्टर जनरल पुलिस वेस्ट जोन रविंद्र स्टीफन ने, जिन्हें साइबराबाद का नया पुलिस कमिश्नर मुकर्रर किया गया है, चारशंबे की शाम वीसी सजनार से अपने ओहदे का जायजा हासिल कर लिया। सजनार को आरटीसी के मैनेजिंग डायरेक्टर मुकर्रर किया गया है। रविंद्र स्टीफन ने अपनी नई जिम्मेदारी संभालने के बाद यकीन दिलाया कि वो साइबराबाद पुलिस की कारकर्दगी को मजीद बेहतर बनाएंगे। वाज़ेह है कि वो माजी में हैदराबाद के वेस्ट जोन के डिप्टी कमिश्नर की हैसियत से भी फ़राइज़ अंजाम दे चुके हैं। उन्हें महाराष्ट्र से मुतसरा अजला, वरंगल, आदिलाबाद, करीमनगर और अनंतपुर में खिदमत अंजाम देने का भी मौका मिला। रविंद्र स्टीफन ने आज चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव, वज़ीर दाखिला महमूद अली और डीजीपी एम महेंद्र रेड्डी से मुलाकात की। उनकी ये मुलाकात खैर सिगाली रही। సిపి సైబరాబాద్ బాధ్యతలు ఇచ్చిన గౌరవనీయ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారికి మనసారా ధన్యవాదాలు. మరి ఇచ్చిన ఏదైతే ఈ బాధ్యత ఉన్నదో సమర్థవంతంగా దాన్ని చేయాలని ఆకాంక్షిస్తున్నాను. మరి రానున్న రోజుల్లో మరి మనందరికీ తెలుసు సైబరాబాద్ ఐటీ కారిడార్ ఈ భద్రతకు సంబంధించి, మరి విమెన్ అండ్ చిల్డ్రన్ సేఫ్టీకి సంబంధించి, మరి సైబర్ క్రైమ్స్కి సంబంధించి, మరి రోడ్ సేఫ్టీకి సంబంధించి ప్రధానంగా దృష్టి పెట్టాలని మరి ఆలోచన ఉన్నది. మరి ఇంతేకాకుండా మరి తెలంగాణ స్టేట్ పోలీస్ ఏదైతే సిటిజన్ ఫ్రెండ్లీ ఇనిషియేటివ్స్ మొదటి పెట్టారో, మరి అది ఆ సిటిజన్ ఫ్రెండ్లీ ఇనిషియేటివ్స్ అన్నీ కూడా కంటిన్యూ చేస్తాము. సైబరాబాద్లో ఇప్పటి వరకు ఉన్న ఏదైతే బెస్ట్ ప్రాక్టీసెస్ ఉన్నాయో ఆ బెస్ట్ ప్రాక్టీసెస్ కూడా ముందుకు తీసుకుపోయి స్టేట్కి మరి తెలంగాణ పోలీస్కి మంచి పేరు తేవాలని. कांग्रेस के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट मल्लू रवि ने कहा कि अलहदा तेलंगाना का क़याम कांग्रेस के सदर सोनिया गांधी की वजह से अमल में आया है। वो चाहती थी कि इस इलाके की तरक्की के साथ साथ पसमानदा तबकात, दलितों, कबाइलों और अक़लियतों को तरक्की के मसावी मौक़े मिले। मीडिया से बातचीत करते हुए मल्लू रवि ने कहा कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव अब तक रियासत के दलितों को दबाते रहे, उन्हें आला अहदों से महरूम रखा गया। बरखिलाफ इसके आलाजात के अहदेदारों को रिटायरमेंट के बाद भी अहम अहदों पर मामूर किया गया। उन्होंने कहा कि IPS ऑफिसर प्रवीण कुमार इसी नाइंसाफ़ी पर एहतजाज करते हुए क़ब्ल अज़ वक्त रिटायरमेंट हासिल कर लिए। मल्लू रवि ने वज़ीर लेबर मल्ला रेड्डी पर शदीद तनकीद की और कहा कि वो ईटा राजेंद्र के बाद TRS के सबसे ज़्यादा बदनवान वज़ीर हैं और वो वज़ीर रहने के अहल भी नहीं हैं। शमशाबाद रोड पर सड़क की तोसी के दौरान हाईवे से मुतसिल मौजूदा कब्रस्तान औलिया अल्लाह के तहफ़्फ़ुज़ के सिलसिले में सदर नशीन वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम ने जिला रंगारेड्डी के आला अहदेदारों के साथ इजलास मुनक़्क़िद किया। इस इजलास में कलेक्टर, RDO के अलावा मुतालिका महकमों के अहदेदार भी मौजूद थे। उन्होंने बताया कि इससे कबल भी ऐसा ही इजलास मुनक़्क़िद कर चुके हैं, जिसमें मजहबी मकामात और इबादत गाहों के तहफ़्फ़ुज़ पर जोर दिया गया था। पुलिस और नेशनल हाईवेज और हमारे CO साहब, पूरे ऑफिसर्स, RDO और 2 मेंबर्स हमारे जावेद साहब और अकबर इदावली साहब,
हम लोग सब मिलके एक मीटिंग करें हाईवेज की। हाईवेज पे जो भी मस्जिद, गिरेवियार्ड, दरगाह जो भी है उसको डिमोलिश नहीं कर सकते, क्योंकि सेंट्रल एक्ट है वो। क्योंकि ग्रेवयार्ड्स कहाँ से लाके फिर आप दूसरा ग्रेवयार्ड रखेंगे वहाँ पर, आप खबर कुछ छीन नहीं सकते ताक़यामत तक कब्रस्तान ही रहता हो। वक्फ प्रॉपर्टी ऑलवेज वक्फ रहती। अगर प्रॉपर्टी है तो उसको कुछ कंसिडर कर सकते। मस्जिद, ग्रेवयार्ड्स को तो कंसिडर करने का सवाल नहीं है। खुसूसन चिल्ला ग्रेवयार्ड ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलीजियस प्लेस है, इसको जो है ना नहीं कर सकते। इसलिए हम लोग आज एक मीटिंग रखे और कमेटी वालों को भी बुलाए, एक विजिट करके देखेंगे वहाँ पर, क्योंकि गिरेब को जो है ना डिमोलिश नहीं कर सकते। गिरेब को डिमोलिश करने से जो है ना ठीक नहीं रहता, इसलिए हाई लेवल एक मीटिंग रखें, फिर इसके बाद और एक मीटिंग रखेंगे। ये चीज़ जो है ना पूरे आल पार्टी को बुला के सबको बिठा के इसको सॉर्ट आउट करेंगे, क्योंकि गिरेब पे से जो है ना ब्रिज ले आने की बात कर रहे हैं वहाँ से, क्योंकि वो गिरेब निकालने से जो है ना बहुत गलत बात हो जाती। तो लिहाजा वो लोग ऑफिसर्स भी उसको एग्री करें। तो इसके बाद में जो है ना वहाँ इंस्पेक्शन करेंगे कमेटी वाले और हमारे अकबर निजामुद्दीन साहब और हमारे इंस्पेक्टर ऑफिसर्स वक्फ बोर्ड, नेशनल हाईवेज, ये लोग सब मिलके इंस्पेक्शन करे बाद हम डिटेल बताएंगे। एरिया कहाँ का, आप कहाँ पे जा रहा है? शमशाबाद। सदनशीन पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी ए जीवन रेड्डी ने मल्काजगिरी के रुकन पार्लियामेंट और सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी रेवंत रेड्डी को इंतबा दिया और कहा कि वह आम जलसों से खिताब के दौरान अपनी जबान को काबू में रखें। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए जीवन रेड्डी ने कहा कि महाराष्ट्र हुकूमत की तरफ से मरकजी वजीर नारायण राणे की गिरफ्तारी का नोट लेते हुए रेवंत रेड्डी को अब समझ जाना चाहिए। जीवन रेड्डी ने कहा कि मल्काजगिरी से रेवंत रेड्डी की कामयाबी तेलुगु देशम और चंद्रबाबू नायडू की देन है। ఆయన విధానం ఎట్లుందంటే రేవంత్ రెడ్డి ఒక డ్రామా ఆర్టిస్ట్ గా 10th స్టంట్ 10th ఆబ్సెంట్ 10th తీసుకుపోతాడు 3 చిత్తలపల్లికి కానీ ఇంద్రవెల్లికి కానీ అది ఆదిపట్లకు కానీ 10th తీసుకుపోతాడు స్టంట్ మాస్టర్ ఉంటారు రేవంత్ రెడ్డి సీఎం కావాలని ఇట్లాంటి స్లోగన్స్ ఇచ్చేవాళ్ళు ఆ స్టంట్ అంతా స్టంట్ మాస్టర్లు అక్కడ ముందర కూర్చుంటారు ఒక 100 మంది నిన్న 3 చిత్తలపల్లి కూడా అదే జరిగింది ప్రజెంట్ ఈయన లేట్ గా పోవడం సభ మీద అందరు పోయిన తర్వాత కాంగ్రెస్ పెద్దలు లేని ఎవరైతే సీనియర్లు గురువృద్ధులు ఉన్నారో స్వాతంత్రం వచ్చిన తర్వాత 70 సంవత్సరాల చరిత్ర గల కాంగ్రెస్ నాయకులు ఎవ్వరు లేరు అక్కడ వాళ్ళు లేనప్పుడు ప్రజెంట్ అవడం మళ్ళా అంశాలు లేవనెత్తడం మళ్ళా వారం రోజుల్లో ఆబ్సెంట్ మళ్ళీ ఉండదు ఆ టాపిక్ మల్లారెడ్డి గురించి మాట్లాడినంటే మళ్ళీ నెక్స్ట్ దాని మీద ఆధారాలు ఉన్నాయి డాక్యుమెంట్లు ఉన్నాయి వార్తలు ఉన్నాయి న్యూస్ ఉన్నాయి మళ్ళీ ఆబ్సెంట్ అయిపోతుంది। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के तर्जुमान ए दयाकर ने कहा कि पार्टी की तरफ से अब तक मुनक्किदा दलित ट्राइबल ढंडोरा प्रोग्राम कामयाब हुए। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि रेवंत रेड्डी के सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी बनने के बाद प्रगति भवन की बुनियादें हिलने लगी हैं। तेलंगाना వచ్చిన తర్వాత తెలంగాణలో కింది వర్గాల ప్రయోజనం కోరే ఆ రోజు మేము కానీ బెల్లయ్య నాయక్ గారు కానీ కాంగ్రెస్ పార్టీలో లేకున్నప్పటికి కూడా మా పోరాటాలు చేసినాం। కాంగ్రెస్ పార్టీలో ఉన్న మా ఎంపీలందరూ మంత్రులు కూడా ఇక్కడి అధిష్టానాన్ని భారతదేశ పార్టీ దేశ స్థాయిలో కూడా మా అధిష్టానాన్ని ధిక్కరించి తెలంగాణ రావడంలో కీలక పాత్ర వహించిన మాట మీ అందరికీ తెలుసు। మాతో కేసీఆర్ గారు పొత్తుతో ఉండి కేంద్రంలో మంత్రి పదవి ఇటు రాష్ట్రంలో కూడా 6 మంత్రి పదవులు తీసుకొని రాజకీయంగా తను బలపడమే కాకుండా మంత్రివర్గంలో కొనసాగిన సంగతి కూడా మీకు తెలుసు। ఒక దశలో తన చేత కాకపోతే అమ్మా ఒకవేళ నేను పార్టీగా ఎదిగితే మీకు ఇబ్బంది అంటే నేను నా పార్టీని కూడా విలీనం చేస్తానది ఇప్పుడున్న ఈ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి ఆనాటి తెరాస అధ్యక్షుడు కేసీఆర్ గారు। అంటే ఒక దశలో తెలంగాణ కోసం కాంగ్రెస్ పార్టీలో విలీనం చేస్తా అన్న కేసీఆర్ ఇవాళ తెలంగాణ వచ్చినాక ఏం చేసింది చూడండి। దళితులకు అస్తిత్వం లేదు,
గిరిజన ఆదివాసీలకు సంబంధించిన సమస్య ఎంత పెద్దగా మారుతుందో పోడు భూముల రూపంలో మనం చూస్తున్నాం. దళిత ముఖ్యమంత్రిని చేస్తా అన్న తాను దళితుడిని ఎందుకు ముఖ్యమంత్రి చేయలేదో కూడా చెప్పలేదు. ఇంకెప్పుడు ముఖ్యమంత్రి చేస్తాడో కూడా ఇప్పటికి కూడా చెప్పట్లేదు. అంటే అటు తెలంగాణ ఇచ్చిన కాంగ్రెస్ పార్టీకి మోసం చేసిండు. जामियातुल मोमिनात हैदराबाद का 29वां जलसे तकसीम असनाद इतवार 29 अगस्त को 10 बजे दिन उर्दू मस्कन खिलवत में मुनक़िद होगा. बानी व नाजिम मदरसा मुफ्ती हाफिज मोहम्मद मस्तान अली ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए बताया कि वज़ीर दाखिला महमूद अली और कौंसल जनरल ईरान मेहदी शाहरखी के हाथों 265 तालिबात में सनदात की तकसीम अमल में आएगी. जबकि मजलिस से अरकान असम्बली अहमद पाशा कादरी, मुमताज़ अहमद खान, साबिक़ सदर नशीन अक़लियती कमीशन आबिद रसूल खान, डायरेक्टर उर्दू अकेडमी डॉक्टर मोहम्मद गौस और रुकन वक्फ बोर्ड मोहम्मद वहीद मेहमानाना एजाजी होंगे. मुफ्ती मस्तान अली ने बताया कि 1991 में 5 तालिबात के साथ इस मदरसे का आगाज़ हुआ था और फिल वक्त 2,500 तालिबात ज़ेर तालीम है. इस्लाम की अजीम दीनी दानिशगाह जामियातुल मोमिनात मुग़लपुरा हैदराबाद के ज़ेर एहतमाम 29वां सालाना एक रोज़ा अज़ीमुश्शान फ़क़ीदुल मिसाल इज्तिमा व जलसे तक़सीम असनाद व अताए खिलत 29 अगस्त बिल-इत्तिफ़ाक़ हुस्न इत्तिफ़ाक़ है कि 29वां जलसा भी है और 29 तारीख़ के दिन ये जलसा अल्हम्दुलिल्लाह मुनाक़िद किया जा रहा है. 29 अगस्त बरोज़ इतवार सुबह 10 बजे उर्दू मस्कन खिलवत मुबारक पर अज़ीमुशान ये मुनाक़िद किया जा रहा है. अल्हम्दुलिल्लाह इसमें हिंदुस्तान के मुख्तलिफ़ रियासतों से तलबा व तालिबात के औलिया व सरपरस्त हज़रात शिरकत कर रहे हैं और इसमें बिलख़ुसूस मेहमान ख़ुसूसी की हैसियत से हमारे रियासत के हर दिल अज़ीज़ महबूब मिल्लत अली जनाब अलहाज मोहम्मद महमूद अली साहब जो हमारे रियासत तेलंगाना के वज़ीर दाखिला है और उनके अलावा जो ईरानी कौंसलेट हमारे हैदराबाद के मुतय्यन है वो भी तशरीफ़ लाएंगे और उसके अलावा हमारे रियासत के मुमताज़ कायदीन और उलमाए कराम मशाइख़ीन इज़्ज़ाम शिरकत फरमाएँगे और बसीरत अफरोज़ इख्तिसार के साथ खिताबात फरमाएँगे. और इस इज्तिमा में ख़ास तौर पर बहुत सारे ख़वातीन के मुताल्लिक़ ऐसे अहम उन्वानात रखे गए हैं जिसमें बहुत सारे ऐसे उन्वानात हैं जो हालात हाज़िरा के एतबार से बहुत अहम है. पर एक मरतबा फिर गुजारिश करता हूँ कि इसमें शिरकत ख़ुद करें और अपने मातहतीन जो भी होते हैं अहल खाना उनको भी शिरकत की दावत दीजिए और उन्हें रवाना कीजिए. क्योंकि जामियातुल मोमिनात का जो मकसद है वो हमेशा अल्लाह की ज़ात पर तवक्कुल है. इसी गर्ज़ से फ़र्जंद जामी निज़ामिया मौलाना डॉक्टर हाफिज़ मुफ्ती मस्तान अली कादरी साहब ने अल्लाह की ज़ात पर और आपकी दुआओं से इस जामिया को क़ाइम किया है. पहली मरतबा 4 तालिबात पर इस जामिया का आगाज़ हुआ है. अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त जामिया में 2500 तालिबात इल्म दीन के ज़ेवर से आरास्ता हो रहे हैं. उलूम दीनिया भी हासिल कर रहे हैं और असली उलूम भी हासिल कर रहे हैं और फ़न्नी तालीम भी हासिल कर रहे हैं. तो बहरहाल उन्होंने इस इदारे को क़ाइम किया है. जिस तरह बाज़ाब्ता यहाँ पर तालीम दी जाती हैं तो इसी तरह इज्तिमात के ज़रिए भी दीन को आम किया जाता है, बिलख़ुसूस ख़वातीन में. तो मौलाना ने बहुत क्योंकि हालात हाज़िरा क्योंकि आप सभी हज़रात समझते हैं कि 2 साल से ऐसे हालात हो रहे हैं, उसके बावजूद भी मौलाना ने पीछे नहीं हटा है अल्लाह की ज़ात पर और आपकी दुआओं से और आपके हुस्न ताउन से इस जामिया के तालीमी मिशन को तालिबात तक इल्म दीन पहुँचाने के लिए ऑनलाइन क्लासेस के ज़रिए यहाँ एहतमाम किया है. अल्हम्दुलिल्लाह तालिबात भरपूर इस्तिफ़ादा हासिल करते हुए तालीम भी हासिल किया है और उसके बाद इम्तिहानात दिया है और इम्तिहानात देने के बाद कामयाब तलबा व तालिबात को 29 अगस्त के दिन तमाम मेहमानान ख़ुसूसी के हाथों उन्हें यानी सनद दी जाएगी और उलमाए कराम मशाइख़ीन इज़्ज़ाम के दस्ते मुबारक से जो तलबा है जो बच्चे हैं क्योंकि जामिया में जिस तरह लड़कियों को तालीम दी जाती हैं तो उसी तरह लड़कों को भी तालीम दी जाती है. लड़कों के लिए कुल्लियतुल बनीन जामियातुल मोमिनात जो यानी क़ाइम किया गया है उसको भी क़ाइम करने वाले मौलाना मुफ्ती मस्तान अली कादरी साहब ही हैं. अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर भी 300 तलबा तालीम हासिल कर रहे हैं. तकरीबन 80 तलबा जो क़ियाम व ताम के साथ क़ियाम पज़ीर है. तो वो जो फ़ारिग़ीन है वहाँ से जो फ़राग़त हासिल करते हैं उन्हें भी इस जलसे में
उनकी दस्तारबंदी मेहमानान खुसूसी के हाथों से अता की जाएंगी। फिर एक मरतबा आप जीएसएमसी की तरफ से दोनों शहरों में कोविड-19 वैक्सीन के टीके अंदाजी की मुहिम जोरों शोर से जारी है। असम्बली हल्के मलकपेट के बद्दी डिवीजन, आजमपुरा और छौनी में कायम करदा ऐसे मराकज का रुकन असम्बली अहमद बलाला ने मुआयना किया। इन मराकज में इब्राहिम मेंशन चंचलगुड़ा और डान स्कूल मलकपेट भी शामिल हैं। नुमाइंदा कारपोरेटर SM अबरार और कारपोरेटर सलाम शाहिद और दूसरे भी उनके हमरा थे। हैदराबाद के इंदिरा पार्क में गैर शादीशुदा जोड़ों के दाखिले पर पाबंदी पर शदीद तनकीदें की जा रही हैं। इसे अखलाकी पुलिसिंग और गैर कानूनी से भी ताबीर किया जा रहा है। आवाम का सवाल है कि पब्लिक पार्क में दाखिले के लिए शादीशुदा होने को मियार किस तरह बनाया जा सकता है। सोशल मीडिया में भी इस मसले को लेकर ज़बरदस्त बहस छिड़ गई है। जोनल कमिश्नर सिकंदराबाद ने गैर शादीशुदा जोड़ों के दाखिले पर पाबंदी से मुतालिक बैनर्स को हटाने की हिदायत दी और इस ज़मन में आवाम से माजरत खाई भी की। रियासती चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने डिफेंस से मुतालिक पार्लिमानी स्टैंडिंग कमेटी के सदर जनरल ओरम से मुलाकात की। उन्होंने रियासत में बिलखुसूस हैदराबाद में डिफेंस के अराज़ियात के तहफ़्फ़ुज़ पर बातचीत की। तेलंगाना सेक्रेटरीट के मुलाजिमीन ने तरक्कियों का मुतालबा करते हुए BR के भवन में चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार के चैम्बर के सामने धरना दिया और नारे लगाए। मुलाजिमीन का कहना है कि हुकूमत तरक्कियों की मांग को नजरअंदाज कर रही है। कवादीगुड़े में हजरत थरथरे शाह रहमतुल्लाह अलैह की कब्रिस्तान से मुतालिक मौक़ूफ़ा अराज़ी पर डबल बेडरूम मकानात की तामीर से मुतालिक वज़ीर एनिमल हस्बेंड्री टी श्रीनिवास यादव के सर्वे पर मुसलमानों में शदीद गम व गुस्सा पाया जाता है और वह एहतजाज भी कर रहे हैं। समाजी जहदकार उस्मानुल हाजरी ने कहा कि मज़कूरा मौक़ूफ़ा अराज़ी का तस्करा वफ़्द की गज़ट में भी शामिल है। उन्होंने कहा कि हुकूमत को अगर डबल बेडरूम मकानात तामीर करना है तो वो अपनी अराज़ी पर करे, लेकिन कब्रिस्तान की अराज़ी पर किसी तामीर की इजाज़त नहीं दी जा सकती। उस्मानुल हाजरी ने बताया कि अफसोस की बात है कि श्रीनिवास यादव की जानिब से किए गए सर्वे के दौरान सदर नशीन वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम भी मौजूद थे। इसके सिलसिले में भी मस्जिद का कुछ हिस्सा लेने की कोशिश की जा रही है। हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं कोई भी काम खिलाफ कानून ना हो और मुसलमानों के जज्बात का इस्तेसाल ना हो, ये गुजारिश है मेरी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जीएसएमसी की तरफ से शहर में तामीर करदा अवामी बैतुल खलाओं पर कब्जों का सिलसिला जारी है। हैरत की बात है कि बल्दिया इस मामले में खामोश तमाशाई बनी हुई है। प्रणापुल पर तामीर मर्दों के एक बैतुल खला पर एक चाय वाले ने अपनी स्टॉल लगा ली तो औरतों के लिए बनाए गए बैतुल खला पर कब्जा करते हुए जानवरों का चारा फरोख्त किया जा रहा है। वज़ीर म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन KT रामाराव को इस अमर का नोट लेना चाहिए। वज़ीर ख़वातीन व बहबूदी अतफ़ाल सत्यावती राठौर ने 21 सितंबर से स्कूलों की कुशादगी के पेश नज़र मुलुगू कलेक्ट्रेट में एक जायजा इजलास मुनक़िद किया। उन्होंने स्कूलों में साफ सफाई और कोविड-19 के प्रोटोकॉल का खास ख्याल रखने की हिदायत दी। इजलास में सदर नशीन जिला परिषद कुसुमा जगदीश, रुकन पार्लियामेंट के कविता, रुकन असम्बली G वेंकटराम रेड्डी, कलेक्टर कृष्णा आदतिया, एडिशनल कलेक्टर्स आदर्श सुराभी, रिजवान पाशाह के अलावा RDO रमना देवी और दूसरे भी शरीक थे। हुमायूंनगर पुलिस ने बाइक्स के सारेक 32 साला जहरुल हसन यजदानी मुतवत्तिन यादगीर कर्नाटक को गिरफ्तार करके उसके पास से 8 लाख रुपए मालियती 13 बाइक्स बरामद किए। डिप्टी कमिश्नर पुलिस वेस्ट जोन AR श्रीनिवास ने बताया कि जहरुल हसन बुरी आदतों का शिकार था और उसने जाली कुंजों से गाड़ियां चुराया करता था। बाज़-ए-आज़म वो इन गाड़ियों को कर्नाटक में फरोख्त भी करता था। एडिशनल इंस्पेक्टर K नारायण रेड्डी की क़यादत में पुलिस टीम ने गिरफ्तारी अमल में लाई। पुलिस स्टेशन के एडिशनल इंस्पेक्टर नारायण रेड्डी, भास्कर SI और उनका सारा क्राइम टीम, ACP शिवमारुति के इन्वेस्टिगेशन टीम के साथ मिलकर पूरे एक अच्छा केस डिटेक्ट करे। आज इसमें 13 टू व्हीलर रिकवर करके आज इसमें 2 एक्यूज्ड है। एक जुवेनाइल ऑफेंडर है, दूसरा यजदानी नाम का एक ऑफेंडर है। उसका नाम पूरा नाम जहरुल हसन यजदानी। ही इज़ अ नेटिव ऑफ यादगीर कर्नाटका। ये रहता इधर बहादुरपुरा लिमिट्स में। ये और उसके जुवेनाइल ऑफेंडर के साथ दोनों मिलके ये 13 गाड़ियों का चोरी करे। इसमें 13 में 9 के तो केसेस रजिस्टर हुए, बाकी के 3 गाड़ी जो है अनक्लेम्ड है। वो अनक्लेम्ड व्हीकल्स जो है उनके भी जो ओनर्स है वो भी उसको वेरीफाई करना है। ये 10 FIRs ऑलरेडी इशू करे सो है। इसमें 3 तो सीज अभी तो
रिकवरी दिखा है, लेकिन इसमें एफआईआर इशू हुए, उनके ओनर्स को ट्रेस करना है। बाकी के 10 केसेस, उसमें 3 हुमायूं नगर, 2 आसिफ नगर, 1 हबीब नगर, 2 नामपल्ली, बहादुरपुरा 1, इस तरह एफआईआर इशू है इतने पुलिस स्टेशन में। और बाकी के 3 व्हीकल्स जिसके ओनर्स आइडेंटिफाई करना है, वो भी आइडेंटिफाई होने के बाद वो भी एफआईआर इशू करेंगे। तो इसमें आज यजदानी के नाम के आदमी को अरेस्ट करें, ये 13 गाड़ी व्हीकल्स रिकवर करें और इसको जुडिशियल कस्टडी में रिमांड करेंगे। 15 अगस्त को अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद उस मुल्क की सूरत हाल और हिंदुस्तान के इक़दामात से वाकिफ करवाने के लिए एक कुल जमाती इजलास दिल्ली में मुनक़िद हुआ। इजलास में 31 जमातों के 37 कायदीन शरीक थे। वज़ीर ख़ारिजा जयशंकर ने बताया कि अफगानिस्तान की सूरत हाल हनूस कशीदा है और हिंदुस्तान की अवलिन तरजीह उस मुल्क से हिंदुस्तानियों को बखूबी वापस लाना है। तमाम जमातों के कायदीन ने भी कौमी इत्तेहाद के जज्बे के तहत ऐसे ही एहसासात का इज़हार किया। वज़ीर ख़ारिजा ने बताया कि अब तक 6 फ्लाइट्स के जरिए हिंदुस्तानियों को वतन वापस लाया गया है। हनूस कुछ हिंदुस्तानी काबुल में हैं। उन्होंने बताया कि बास अफगानी शहरियों को भी जो हिंदुस्तान आना चाहते थे, दिल्ली ला लिया गया है। हुकूमत अपने तमाम शहरियों को वापस लाने के अहद की पाबंद है। मीडिया से बातचीत करते हुए वज़ीर ख़ारिजा ने बताया कि हिंदुस्तान लाए गए जुमला 565 अफराद में हिंदुस्तानी सिफारत अमले के 175 अरकान, 263 दीगर हिंदुस्तानी, 112 अफगानी शहरी और दूसरे ममालिक के 15 शहरी शामिल हैं। उन्होंने कहा हिंदुस्तान के अफगानिस्तानी अवाम के साथ दोस्ताना ताल्लुकात मजबूत हैं, जिसका इज़हार वहाँ हमारी शराकतदारी से जारी 500 प्रोजेक्ट्स हैं। हुकूमत का कहना है कि तालिबान ने दोहा खतर में गुज़श्ता साल अमेरिका के साथ किए गए वादे को तोड़ा है। उसने मजहबी आज़ादी और जमहूरियत की बहाली के साथ साथ अफगानी समाज को हुकूमत में नुमाइंदगी देने का वादा किया था। मरकजी वज़ीर पार्लिमानी उमूर प्रहलाद जोशी, राज्यसभा में कायदेवान पीयूष गोयल के अलावा राज्यसभा में अपोजिशन के लीडर मल्लिक अर्जुन खड़गे, लोकसभा में फ्लोर लीडर अधीर रंजन चौधरी, साबिक वज़ीर आज़म देवे गौड़ा, एनसीपी के लीडर शरद पवार, डीएमके के टी.के. बालू, अपना दल की अनुप्रिया पाटिल और मजलिस के सदर बैरिस्टर असद नवेसी भी इजलास में शरीक थे। 37 leaders of 31 parties were there. Almost everybody spoke, and there was I had done Prahlad ji and I had done some introductory remarks. Foreign Secretary gave a detailed presentation after that. Then there were clarifications and comments on the presentation and on the views of parties on the situation in Afghanistan. I responded to everybody's comments individually, and the message which we all want to give you, all of us political parties, including the government, is that on this matter we all have a very similar view. We have a strong national position on Afghanistan. The friendship with the Afghan people is something which matters to all of us. So we approach this situation very much in a spirit of, I would say, national unity. So there were concerns. Most of the questions and issues were about evacuation. I shared with them that we have under Operation Devi Shakti done 6 flights. The latest flights was this morning, which took off at 3 o'clock. We have brought back most of the Indians, but not all of them. There are still a few out there. Some of them could not make it for the flight yesterday. But definitely we will try and bring out everybody. We have also brought out some Afghan citizens who wanted to come to India at this point of time. We have tried to address many of the other issues, like by instituting an e-visa policy. The overall sense was that government is very, very strongly committed to ensuring the full evacuation as soon as possible, and also saying that in terms of any international decisions which are made, any gatherings which are there, that our diplomacy, our role, our interests are recognized. We are in touch with many partners. There will be many more meetings in the coming days. I think some of you know, last 2 days President Putin and Chancellor Merkel spoke to Prime Minister. There will be, I think, some other calls at his level. There are many other foreign minister calls at my level.
So there will be a lot of activity on the Afghanistan front, but at the moment, as I said, our focus is on evacuation, and the government is doing everything to ensure that we bring back our people. Thank you very much. तालिबान के साथ रिश्तों को लेकर क्या बात हुई है? सरकार का क्या रिश्ता रहेगा? नहीं, ऐसा है, आप वहाँ काबुल की स्थिति, अफगानिस्तान की स्थिति तो देख रहे हैं। अभी इस सिचुएशन में जब वहाँ सिचुएशन सेटल डाउन नहीं हुआ, अगर आपके जो पॉलिसी, आगे की पॉलिसी के सवाल जो हैं, आप इसमें आपको थोड़ा और पेशेंस दिखाना होगा। थैंक यू। मुल्क में गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान कोविड-19 के 46,164 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जबकि इसी मुद्दत में 607 नई अमवात हुई हैं। मरकजी वज़ारत सेहत के प्रेस नोट में बताया गया कि केरला से सबसे ज्यादा केसेस सामने आए। 31,444 नए केसेस और 215 अमवात इसी रियासत में हुई हैं। वाज़ेह है कि मरकजी वज़ीर सेहत मुनसुख मंडाविया ने 16 अगस्त को केरला का दौरा करते हुए रियासत में कोविड-19 की सूरत हाल का जायजा लिया था। उन्होंने चीफ मिनिस्टर पी विजयन और वज़ीर सेहत वीना जाज से इस सिलसिले में बातचीत भी की थी। इसी दौरान इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के मुताबिक चारशंबे को मुल्क भर में 17,87,283 अफराद के कोविड-19 टेस्ट किए गए।